Welcome to the online platform of Kautilya Academy Indore. This is an introduction lecture जिसमें हम हमारे अपकमिंग ऑनलाइन बैच की डिस्कशन करने वाले हैं. Kautilya Academy is going to launch an extensive program of completing the entire MPPSC prelims plus mains syllabus in our upcoming course. So, the name of this course is Online Gate. So, in this we were discussing that this program is going to help you succeed in both prelims and mains examination. Today we are going to discuss the syllabus of prelims plus mains examination, and after that we are going to discuss that how this online program is going to help you excel in your examination. Before discussing the syllabus of prelims, we will first discuss the syllabus of mains examination, because the mains examination completes the entire syllabus of prelims examination. That is why it is our belief that जो prelims और mains की preparation है वो साथ में ही होती है. There is no separate preparation for prelims or mains examination. So here we have our first paper, in which part A comprises of history. In history, what we have: political, economic, social, cultural history of India from Harappan civilization till 10th century. Till 10th century means what? It is the end period of what? Ancient civilization, ancient history. It starts from the Stone Age, Harappan civilization, and ends up till what? The 10th century. इसके अंदर we will discuss the entire ancient history. This is also the part of prelims examination as well as mains examination. Then in this section we talk about medieval history, and the last portion is of what? Modern history. Also there are some specific topics, very specific topics, and the best thing about the syllabus of MPPSC is कि उन्होंने पूरे सिलेबस को पॉइंट वाइज लिख दिया है. आपको सिर्फ उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को थॉरली प्रिपेयर करना है. इट इज नॉट लाइक द सिलेबस ऑफ यूपीएससी जहां पे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा रहता है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं. इफ यू हैव कंप्लीटेड द बेसिक सिलेबस ऑफ history, then the entire syllabus which is asked in the MPPSC examination is completed thoroughly. Reaction of Indians against British colonial rule, in which we have to talk about peasant and tribal movement. There are very much questions, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं 3 markers, 5 markers, जो कि बहुत specific tribal movement से आ जाते हैं. Then under this part itself आपको एमपी का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, वो डिस्कस करना होता है. यहां पे जो एमपी की मॉडर्न हिस्ट्री है उसका पोर्शन आ जाता है. देन डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, जो डायनेस्टीज हमारे मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न टाइम पीरियड में रही हैं, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट थी. फॉर एग्जांपल गोंडवाना, बुंदेला, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल स्टेट, हमें इनके बारे में बहुत थॉरली डिस्कस करना होता है. ऑल्सो एमपीपीएससी आपसे पूछ लेता है कि इनकी जो जियोग्राफिकल लोकेशंस है एमपी के कंटेक्स्ट में वो कहाँ लोकेटेड है. अब व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड? द पेपर ऑफ मेंस इज वेरी सिंपल. Three markers, 5 markers, and 11 markers. In this you have word limit of 10 words. Here you have 50 words, and here you have 150 words. 10, 50 and 150 words. Under this itself you have to write the entire comprehensive answer of your questions. अब आपके पास सवाल आया है फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर डायनेस्टी से. फॉर एग्जाम्पल होलकर डायनेस्टी इज मेंशन्ड इन योर 3 marker. Then you have to write the geographical location.
यू हैव टू मेंशन द टाइम पीरियड इन विच दैट डायनेस्टी एग्जिस्टेड, और तीसरे में आप किसी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर का नाम लिख सकते हैं, राजा का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जो कि उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में आपको एक कॉम्प्रहेंसिव आइडिया दे दे. 50 marks you can write 5 points, and in 11 markers you have a sufficient word limit जहां पे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड विद अ कंक्लूजन आप एक अच्छा कॉम्प्रहेंसिव आंसर लिख सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी. The syllabus is geography. The syllabus asked in the paper of geography is also very comprehensive and very easy. आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. क्यों? क्योंकि एक बार जब आपने मेंस का पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है तो वही जो सिलेबस है ऑब्जेक्टिवली आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है. देयर इज नथिंग डिफरेंट. मेजर फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स. जो पेपर 1 में पार्ट बी है वो ज्योग्राफी है, पार्ट ए इज व्हाट, हिस्ट्री. अब इसकी जो यूनिट 1 है उसमें आपसे पूछी जाती है वर्ल्ड ज्योग्राफी. आपको पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है कि आपको हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक कंट्री के बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए. पेपर आपसे एक अंडरस्टैंडिंग चाहता है कि आपको पूरे वर्ल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स है. फिजिकल फीचर्स मतलब कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, किस रीजन का टेम्परेचर क्या रहता है, इक्वेटर के आसपास कौन सी कंट्रीज बिलोंग करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन सी कंट्रीज बिलोंग करती हैं. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पेपर आपसे चाहता है. इससे आपके मेंस में फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर कोई वो रिवर पूछ लेगा 3 मार्कर में, 5 मार्कर में आपसे पूछ लेगा कि फॉर एग्जांपल जो अमेरिका में ग्रेट कैनियंस प्रेजेंट है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, या ग्रेट कैनियंस कहाँ प्रेजेंट है और उनके बारे में बहुत एक स्पेसिफिक फीचर क्या है. 3 मार्कर में वो आपसे पूछ लेगा कि वर्ल्ड में किसी सिग्निफिकेंट रिवर का नाम मेंशन कर दिया, अब आपको उस नाम के बारे में बताना है. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. वेजिटेशन पूछ सकता है, किस रीजन में कैसी रेनफॉल होती है. अर्थक्वेक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि अर्थक्वेक्स किस टाइप से आते हैं, क्यों आते हैं, क्या रीजन होता है अर्थक्वेक्स आने का, कौन से वर्ल्ड के वो पार्ट्स हैं जो कि अर्थक्वेक या टेक्टोनिक प्लेट्स वाले रीजन में प्रेजेंट है. आपको इन सब का बेसिक आइडिया चाहिए. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उन्होंने आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि हम आपसे क्या क्या पूछेंगे. अब फॉर एग्जांपल माउंटेन्स लिखा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा है, तो अब आपको वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जिस कंट्री में प्रेजेंट है उसका नॉलेज चाहिए. आपसे उन्होंने पूछा प्लेट्यूज का है, प्लेन्स का है, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स. तो जो भी वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस पेपर्स में पूछी गई हैं आपको उनको थॉरली प्रिपेयर करना है. नाउ अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिसिटी एंड साइक्लोन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना. ये कब होते हैं, क्यों होते हैं, कौन से रीजन्स ज्यादा प्रोन है वो पता होना चाहिए. इंडिया के आसपास या वर्ल्ड में जो बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स या साइक्लोन्स आए हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रखनी होगी. देन क्लाइमेट, सीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, क्लाइमेट रीजन, क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इफेक्ट. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में रखनी है. यहां पे जब आप ये चीजें पढ़ रहे होंगे तो यहां पे आपका जो प्रीलिम्स का सेक्शन है जहां पे आपको मैपिंग करनी पड़ती है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. हर साल आप प्रीलिम्स का पेपर देख लीजिए तो आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल एटलस माउंटेन्स कहाँ पे लोकेटेड है, सरगासो सी कहाँ पे लोकेटेड है. क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं. क्वेश्चंस में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स है ये किस कंट्री के पास लोकेटेड है. वो आपको मैप बेस्ड क्लासेस से समझ में आएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से. ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सेम जो चीज वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में उन्होंने पूछी है अब वो उन्होंने इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछ ली है कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स इंडिया के कौन से बहुत सिग्निफिकेंट है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिवीजन एंड फिजियोग्राफी. फिजियोग्राफी मतलब कि पूरा जो इंडिया है वो अलग अलग टाइप ऑफ फिजिकल फीचर से प्रेजेंट है. कहीं डेंस माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं. तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी. वो आ जाता है फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया के अंदर. ओरिजिन ऑफ मानसून, एल नीनो, क्लाइमेट, सीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक रीजन्स.
अब रेनफॉल से रिलेटेड एक टॉपिक है। अब रेनफॉल से रिलेटेड फिनोमिनाज हैं, जैसे एल नीनो हो गया, ला नीना हो गया, इंडियन ओशन डाइपोल हो गया। तो दीज टॉपिक्स आर अंडर द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट। देन नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, रॉक साइकिल। अब आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि द इंफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स या रॉक साइकिल स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। फिर भी पिछले साल एमपीपीएससी ने पूछ लिया था कि विच टाइप ऑफ रॉक फॉर्म्स हैव पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, आंसर वाज सेडिमेंट। बट जब आप मेंस के लिए स्पेसिफिकली फोकस करके प्रिपरेशन करते हैं तो जो प्रीलिम्स है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस मेंस के अंदर ही आ जाता है। देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर वी हैव टू डिस्कस द सेंसस। सेंसस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सेंसस एक रूटीन एक्टिविटी होती है जो कि हर 10 साल में कंडक्ट कराई जाती है। अभी तक एमपीपीएससी 2011 का जो सेंसस था उसके बेसिस पे सवाल पूछता था। अब 2021 का सेंसस कुछ समय में आ जाएगा, तो जो एमपीपीएससी के क्वेश्चंस हो जाएंगे वो 2021 के सेंसस से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, इन सब के बारे में बात करनी होती कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई, कंट्री में किस रीजन में कितनी पॉपुलेशन में मेल, फीमेल, एससी, एसटी, किस ट्राइब की प्रेजेंट है, किस रिलीजन के लोग कहाँ पे ज्यादा रहते हैं। यू हैव टू टॉक अबाउट डेंसिटी कि कौन से स्टेट्स में डेंसिटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार के स्टेट्स में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली केरला और जो साउथ के स्टेट्स हैं उनमें डेंसिटी कम है। सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, इनकी बात करनी होगी। Now these are somewhat new topics which are introduced in our syllabus when the syllabus was changed in past years. Food processing and related industries. यहाँ पे जो आज के समय में यूज होता है पैक्ड गुड्स का, जो एडिबल्स होते हैं, जो खाने की चीजें होते हैं, जो फिनिश गुड्स होते हैं, जिनको हम डिपार्टमेंटल स्टोर से लेते हैं, बनाते हैं और खाते हैं, वैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल लाइफ कैसे बढ़ाई जाती है, उनका यूजेज कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे और प्रोडक्ट्स को लाया जा सके कि उनको माइक्रोवेव करके या सिर्फ उबाल के खाया जा सके, वो सारे ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज में कंप्लीट होते हैं। अब नाउ दिस टॉपिक, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। दिस इज द सिमिलर टॉपिक जो आपसे कहां पूछा जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। बट चेंज क्या है, यहां पे अब आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं रखनी, आपको यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग रखनी है। क्यों? क्योंकि जिन मिनरल्स और रिसोर्सेज के बारे में आप ऑब्जेक्टिवली पढ़ते हो कि एमपी के कौन से पार्ट में कौन सा मिनरल प्रेजेंट है, कौन सी वो माइन है जहां से मिनरल को एक्सकेवेट किया जाता है, ठीक है। अब आपको जानना है कॉम्प्रिहेंसिवली कि कौन कौन सी वो माइंस हैं जो कि कॉपर का एक्सकेवेशन करती हैं एमपी में। एमपी में हाईएस्ट प्रोडक्शन कॉपर का क्यों है? प्री आपसे पूछेगा कि कहां है और मेंस आपसे पूछेगा कि क्यों है। तो जब आप क्यों को कवर करते हैं तो ऑब्वियसली जो पहला क्वेश्चन है कि क्या है या कितना किस रीजन में प्रेजेंट है वो अपने आप कवर हो जाता है। देन मेजर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, फॉरेस्ट, मिनरल्स, दीज आर द टॉपिक्स। जैसे आपसे प्री में वो पूछेगा कि एमपी में हाईएस्ट प्रोडक्शन किस क्रॉप का, या एमपी कौन सी क्रॉप प्रोडक्शन में किस रैंक पे, बट वो यहाँ पे आपसे पूछेगा बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कि कॉटन का प्रोडक्शन एमपी के किन पार्ट्स में होता है और हाईएस्ट क्यों होता है। क्यों कुछ रीजन से स्टेट के ऐसे हैं जिन्होंने एक महारत हासिल करके रखी है कुछ प्रोडक्ट्स को बहुत हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने में। तो दीज आर द वेरी एनालिटिकल क्वेश्चंस जो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। नाउ द सिलेबस हैज अ वेरी डिस्टिंक्ट डाइवर्सिटी। अब ज्योग्राफी के ही अंदर आपको वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट दे दिया है, काहे में, यूनिट 4 में। अब आपको यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनका डिस्कशन करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर मैनेजमेंट, इनके बारे में हम कैसे जाने, कैसे बात करें, वो हम यहाँ पे जानते हैं। ग्राउंड वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन की बात हम यहाँ पे करते हैं। नेचुरल मैन मेड डिजास्टर्स, कॉन्सेप्ट, स्कोप, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेसिफिक हजार्ड्स एंड मिटिगेशन, कि जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज आती हैं,
इनको हम आने से पहले कैसे जज कर सकते हैं? जो रीजन्स है, फॉर एग्जांपल उड़ीसा का रीजन इज वेरी प्रोन टू रेगुलर सुनामीज, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वो रीजन बहुत प्रोन है साइक्लोन से, तो हम कैसे वहां का कंस्ट्रक्शन करें? अगर प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में साइक्लोन आने की, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? उसकी बात हम करते हैं नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर मैनेजमेंट में। देन कम्युनिटी प्लानिंग। कम्युनिटी प्लानिंग के अंदर हम बात करते हैं कि कैसे वो कम्युनिटीज हैं, फॉर एग्जांपल विलेज कम्युनिटीज है या ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनको कैसे हम अपलिफ्ट करें, कैसे उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, कैसे जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो टैलेंट्स हैं, उनको और इंप्रूव किया जाए। एडवांस टेक्निक्स इन ज्योग्राफी। अब क्या है, मॉडर्न टाइम में हम जो ज्योग्राफी का यूज है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करते जा रहे हैं। वह पहले ज्योग्राफी का लिमिटेड यूज होता था जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनके एनालिसिस में। आज उस एनालिसिस को हम मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू करते हैं। रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग इज अ टेक्निक की हम सैटेलाइट्स का और कैमरास का यूज करके किसी रीजन की जो टोपोग्राफी है उसको एनालाइज कर सकते हैं। हम वहां पे जान सकते हैं कि ये जो सॉइल है कितना प्रोडक्टिव होगा, कितना उपजाऊ होगा। हम ये जान सकते हैं कि इस रीजन में किस टाइप का वेजिटेशन हो सकता है। तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन हम रिमोट सेंसिंग के लिए, रिमोट सेंसिंग के थ्रू जान सकते हैं। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस एंड एप्लीकेशन। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीपीएस एंड एप्लीकेशन। यहां से हम जान सकते हैं फॉर एग्जांपल कि किस स्टेट में कौन सी क्रॉप लगी है, वो क्रॉप कितनी डेंस है, उस क्रॉप से कितने रिसोर्सेज आने वाले हैं और कैसे फार्मर्स का फायदा होगा। हम ये जान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी रीजन की जो क्रॉप है वो खराब हो सकती है, साइक्लोन आ रहा है। अब जो गेहूं है या कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप है वो एकदम पीक पे है, उसको काटने के समय आ रहा है, और उसी टाइम पे प्रोबेबिलिटी हो गई कि साइक्लोन आ रहा है। अब उस साइक्लोन से कैसे बचना है, वो क्रॉप को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, वो सब हम इन टेक्निक्स के थ्रू जान सकते हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन ज्योग्राफी। Now the question is why you have to read this? Because as a bureaucrat it is expected कि आपकी जो रीजन है जहां पे आप पोस्टेड हैं, वहां पे अगर कोई ऐसी सच प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किन मेथड्स के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे एज अ ब्यूरोक्रेट आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी फार्मर्स का या किसी एलिवेटेड इंसान की मदद कर सकते हैं। That is why these things are included in your syllabus. Now, the paper 2. General Studies, Constitution, Governance, Political and Administrative System. यहाँ पे भी this section of polity is totally what specified for the main syllabus. अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्री का ना अलग पढ़ना होगा। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंसेप्चुअल एलिमेंट्स एंड फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये जो टॉपिक है, दीज आर टॉपिक्स व्हिच यू हैव टू कवर कॉम्प्रिहेंसिवली। नाउ प्रीलिम्स विल आस्क यू अबाउट कि यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो किस डेट को इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, प्रीलिम्स में अभी इस बार के पेपर का ये क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की उन्होंने डेट पूछी थी। यहां पे वो आपसे पूछेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रेजेंट हुआ था उसके की पॉइंट्स क्या थे। यू हैव टू ईदर राइट दैट इन 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स। ठीक है, फाउंडेशन, कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल उन्होंने आर्टिकल 14 मेंशन कर दिया या राइट टू प्राइवेसी मेंशन कर दिया 3 मार्कर में। अब आपको बताना है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड बेसिक आइडिया क्या है राइट टू प्राइवेसी का। ये जो चीजें हैं आपको बहुत स्पेसिफिकली समझानी हो। अब यहां पे कीवर्ड्स उन्होंने मेंशन करे हैं, Federalism, center and state relations. Now these topics are very comprehensively covered in books and your class as well. आपको क्या करना है, जितने ये टॉपिक मेंशन है इनके 1 पेज नोट्स बना लेने। एक एक पन्ने के अगर आपने एक एक टॉपिक के नोट्स बना लिए
उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PILs। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कब इंट्रोड्यूस हुए, इनकी यूटिलिटी क्या है, इनका काम क्या है, कैसे हमारी डेमोक्रेसी को अपलिफ्ट करने में इन्होंने हेल्प करी है, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे लिखनी है। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, UPSC, MPPSC, नीति आयोग, ये जितनी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उनके बारे में बात हुई है। अब ये जो पोर्शन है दैट इज ऑलरेडी कवर्ड इन योर प्रीलिम सिलेबस यूनिट 10। हम आगे देखेंगे कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें यूनिट 10 में ये चीजें कवर्ड, और वही चीजें आपसे मेंस में पूछी जा रही हैं। वहां पे आप चीजों को सिर्फ फैक्चुअली पकड़ते हैं कि जो कमीशन बनी, कमीशन के कितने मेंबर्स हैं, कमीशन के चेयरमैन कौन रहे हैं, कमीशन किस तारीख को स्टैब्लिश हुई है, कोई अमेंडमेंट हुआ है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। यहाँ पे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस कमीशन की रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, प्लस वो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी थी। देन यहाँ पे थोड़े नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं या मॉडर्न चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ मीडिया प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड सोशल मीडिया। ऑल्सो जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं हिस्ट्री में, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और कंट्री की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डेवलप किया कि हमारा संविधान किन सिद्धांतों पे काम करेगा, जब उन सब की बात होती है तो ये सारे जो आपके मॉडर्न थिंकर्स हैं इनकी बात होती है। कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। आपके एथिक्स के सिलेबस में भी कुछ थिंकर्स हैं, बट दोज थिंकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स बट नॉट पॉलिटी। यहाँ पे जो थिंकर्स हैं ये सब पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, नाउ दिस इज अ न्यू इंट्रोडक्शन इन योर सिलेबस ऑफ पॉलिटी, जहां पे आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट होता है ये पर्टिकुलरली टॉपिक वहां से उठाया गया है। यहाँ पे आपको पॉलिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उनकी बात की जाती है, जैसे पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, दीज थिंग्स आर टॉक्ड अबाउट। नाउ द पेपर 2 पार्ट B. In this we are going to talk about economics and sociology. So the new syllabus which was introduced, in this they have decided the entire syllabus very comprehensively. यहाँ पे इकोनॉमिक्स के साथ उन्होंने सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी की स्टडी भी डाली, ताकि एक जनरल इंसान को जिसको सोसाइटी के आइडिया नहीं है, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो भी उस चीज को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल हमें पहले एग्रीकल्चरल इश्यूज, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स होते हैं उनके बारे में बात करनी है। जो नेशनल इनकम होती है हम उनके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। जो बैंक है, रिजर्व बैंक, कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में डिस्कशन होता है। टैक्सेशन सिस्टम की बात होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो GST एज अ टैक्स है वो क्या होता है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स है, कितने टाइप ऑफ टैक्सेस हमारे कंट्री में चलते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है 3 मार्कर में या 5 मार्कर में। फॉर एग्जाम्पल 3 मार्कर में उन्होंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, तो दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड। देन PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात होती है। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बहुत सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सेम चीज अब आ जाती है MP के कॉन्टेक्स्ट में। हमने पहले इंडिया की बात करी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट विथ रेफरेंस टू MP। In this section we are talking about what? Same, एग्रीकल्चर। यहाँ पे स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर की बात हो रही है। एग्रीकल्चर में अलग अलग जो हॉर्टिकल्चर है, डेयरीज है, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है,
उन सेक्टर्स में क्या प्रॉब्लम है, उन सेक्टर से कितना रेवेन्यू आ रहा है, उन सेक्टर्स को और कॉम्प्रहेंसिव कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में स्पेसिफिकली बात होती है। वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज कि स्टेट में स्पेसिफिकली एमपी में क्या रिसोर्सेज है। देन डेमोग्राफिक सिनेरियो, जो बात हमने वहां करी सेंसस, उसकी बात हो जाती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ ट्रेंड्स चैलेंजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयबिलिटी, प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। So whatever we are discussing under the topic of economy with context to India, in this section we are going to discuss all these things with context of Madhya Pradesh. Now as a bureaucrat and as an individual, it is expected out of you to have basic understanding what human resource development. You have that skills of managing multiple people. You should be able to understand the psychology and efficiency of every individual and work according to it. In this human resource development, हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम कैसा है, सेकेंडरी एजुकेशन कैसा है, टर्शरी एजुकेशन कैसा है, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे ज्यादा यूज किया जा सकता है, कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम उसको यूज करने के लिए, कैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वोकेशनल ट्रेनिंग अगर इंक्रीज होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो सकता है, उसकी बात की जाती है। उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनकी बात की जाती है। फिर हम जो डिफरेंट सोशल क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंटली एबल्ड, सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन, विमेन, अंडर प्रिविलेज, डिस्प्लेस क्लासेस, इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स चल रहे हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसकी बात करते हैं। देन elements of social harmony. Now these topics are completely what focused these on your sociology. आपको यहाँ पे जो सोशियोलॉजी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं सोशियोलॉजी के, जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में बात करी जाती है। और ये जो आपका टॉपिक है, आपने देखा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, एनजीओज हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, इसके बारे में आप थोड़ा सा आपके जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वहां पे भी आप पढ़ते हैं। तो ये एक ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है, बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली किस कंटेक्स्ट में बात करनी है, सोसाइटी के कंटेक्स्ट में बात करनी होती है कि क्या प्रॉब्लम्स है, अप्रोच बदल जाती है चीजों को हैंडल करने की। अगर एनजीओ के बारे में आपको पॉलिटी में क्वेश्चन आ रहा है, मतलब पॉलिटी के पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां पे आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स डालोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स डालोगे, कैसे डेमोक्रेसी को हिंडर कर रहा है वो बताओगे। जब आपसे एनजीओ के बारे में सोसाइटी के कंटेक्स्ट में पूछा गया है तो आप यहाँ पे बताएंगे कि कैसे एनजीओ सोसाइटी को बेनिफिट करती है, कैसे एनजीओ में कुछ गलत प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं जिसकी वजह से एनजीओज में रिसेंटली गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, कौन सी वो बहुत सिग्निफिकेंट एनजीओज है जिन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए सोसाइटी के काम किया है। देन यूनिट 5, पॉपुलेशन हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, पॉपुलेशन कंट्रोल। सेम बात हो रही है जो कि हम सेंसस के कंटेक्स्ट में करते हैं, बट अब उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करें, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करी जा रही है। Status of tribes in MP. Now here there is a very small topic of problems and solutions associated in context of MP. ट्राइब्स में क्या प्रॉब्लम्स है, एमपी की जो ट्राइब्स है उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे एमपी की ट्राइब्स को गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू अपलिफ्ट किया जा रहा है, वो चीजों पे आपको एनालिसिस करना है। देन विमेन एजुकेशन, फैमिली हेल्थ, वाइटल एजुकेशन, जो आपका हेल्थ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में जो मैल न्यूट्रिशन रेट है या जो वीक बच्चे हैं, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एनीमिया है, जो बच्चों का डेथ रेट है बीमारी की वजह से अर्ली एज में, वो क्यों हो जाता है, उन सब के बारे में बात करते हैं आप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, इनका भी डिस्कशन करते हैं हम इसी टॉपिक के अंदर। Now paper of science and tech, third paper, लास्ट टू लास्ट ईयर द लास्ट मेंस जो इस सिलेबस पे कंडक्ट हुआ था
उसमें जो GS3 का ये वाला पेपर था साइंस एंड टेक वाला, दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय MPPSC, बट MPPSC ने इस टॉपिक के अंदर बहुत ही एनालिटिकली पूछ लिया था। टॉपिक्स वही हैं जो 10th लेवल पे आपने पढ़े, बट इसके अंदर आपको साइंस एंड टेक भी पढ़ना पड़ता है और थोड़ा सा एक सेक्शन मैथमेटिक्स का भी आता है। बट द गुड थिंग इज कि आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हैं। वर्क, पावर एंड एनर्जी, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वर्क की बात करनी पड़ती है। यूनिट मेजरमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, साउंड, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, लाइट एंड हीट। अब यहाँ पे जो ये टॉपिक्स लिखे हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस आपसे बस पूछे जाएंगे कहाँ पे, मेंस एग्जामिनेशन में। एंड द गुड थिंग इज कि प्री से भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स के जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यू कैन एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड यू विल गेट टू फाइंड दैट कि जो प्री में सवाल पूछे गए हैं वो फिजिक्स के इन्हीं टॉपिक से पूछे गए, एंड दैट मेक्स योर जो प्रिपरेशन है वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, कि प्री और मेंस दोनों को ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री, एलिमेंट, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, मटेरियल्स, एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, फिजिकल केमिकल चेंजेस एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जो टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं प्री में। यहाँ पे जो टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, यहाँ पे आपको कोई सॉल्ट दे दिया जाएगा या कोई एसिड दे दिया जाएगा और आपको 3 मार्कर में, 5 मार्कर में उसके यूजेस बताने होंगे, उसके स्ट्रक्चर बताने होंगे, उसके बॉन्डिंग प्रोसेसेस कैसे होते हैं वो बताने होंगे। नाउ दिस सेक्शन ऑफ बायोलॉजी, जो आपका यूनिट 7 है प्री के सिलेबस में, वहां पे ह्यूमन बॉडी करके एक टॉपिक मेंशन है। नाउ ह्यूमन बॉडी के अंदर यही सारी चीजें आती हैं जो आपके मेंस के सिलेबस में लिखी हैं। तो इफ यू प्रिपेयर फॉर योर मेंस तो आपका जो यूनिट 7 का ह्यूमन बॉडी का टॉपिक है वो कंप्लीटली कवर हो जाता है। Then there is another topic of computers, then artificial intelligence, science and technology, जो कि आपके प्री में यूनिट 9 का पूरी एक यूनिट बनाती है। अब वो जो यूनिट 9 है वो आपके इसी पूरे सिलेबस पे कवर हो जाती है। कंप्यूटर्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, लैंग्वेजेस, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, पोर्टल साइट्स एंड वेब पेजेस। ये टॉपिक आपका टोटल ओवरलैपिंग है जो कि यूनिट 9 आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। बट द ओनली थिंग विच इज डिफरेंट हियर इज दिस यूनिट। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको पूरे सॉल्व करने होते हैं। बट द गुड थिंग इज कि आपका जो CSAT का पेपर होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS का होता है, CSAT का होता है। तो आपका जो सेकंड पेपर होता है वो CSAT का होता है, और CSAT के पेपर के लिए आप ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा सिलेबस कई बार आप नोटिस करेंगे कि ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो टॉपिक है इन्होंने साइंस एंड टेक में डाल दिया है, जबकि हम ऑलरेडी इसके कुछ पार्ट्स सोसाइटी वाले पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस प्रिवेंशन, नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, प्राइमरी नॉलेज ऑफ आयुष, हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स, मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अगर आपने सिलेबस भी थॉरोली पढ़ा है तो इस बार के प्रीलिम्स में आपसे एक सवाल फ्री में बन जाता। क्यों? क्योंकि प्री में इस बार सवाल आया था कि आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, और आयुष का फुल फॉर्म आपके सिलेबस में ही लिखा है। पीपल हैव कमिटेड दिस मिस्टेक और ऑल्सो, कि उन्होंने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया। दे वर नॉट श्योर अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ दिस, जो कि सिलेबस में एज अ की पॉइंट मेंशन्ड है। बट इसके अंदर आप जो आयुष है उसके बारे में जानते हैं, आयुर्वेदा क्या है, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब क्या है, इनके बारे में आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते हो। मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानोगे। तो बेसिकली ये टॉपिक आपका डिजीज एंड हेल्थ से रिलेटेड है। यूनिट 7 में ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप थॉरली पढ़ते हो। कौन सी यूनिट 7? प्रीलिम्स में जो यूनिट 7 है, अभी हम देखेंगे, डोंट गेट एंशियस अबाउट इट।
यहाँ पे आप क्या जानते हो, इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ, उससे क्या लिमिटेशंस हुए टेक्नोलॉजी से, हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, ये आपको याद हो तो ज्योग्राफी का टॉपिक है और हम पहले ही डिस्कस कर चुके होंगे इस टॉपिक को। फिर ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इसरो है, आरआर कैट है, एसडीएससी, डीआरडीओ, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये आप ऑब्जेक्टिवली प्री में पढ़ते हो। बस इन्हीं के बारे में आप इनके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और इनके जो मेजर प्रोजेक्ट्स रहे हैं, अचीवमेंट्स रहे हैं, उनको आप एनालाइज करके थॉरली पढ़ लेते हो काय में, मेंस में। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। बायोटेक्नोलॉजी, क्लोन्स, रोबोट्स, अब ये जो टॉपिक्स है ये आपके काय के आ गए, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पे बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ टॉपिक है आपके क्लोन्स और रोबोट्स के होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। देन यहाँ पे जो आपके साइंटिस्ट रहे हैं, जो की साइंटिस्ट इंडिया में रहे हैं, उनके क्या अचीवमेंट्स रहे, उन लोगों ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस करे इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑल्सो आज उन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्ट्रीब्यूशंस का कैसे हम यूज कर सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। नाउ दिस, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर करेंगे समवॉट अंडर द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप बात करेंगे कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी मैनेजमेंट की, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मेंटेनेंस, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशनिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इनके बारे में आप बात करते हैं। ज्योग्राफी में ये वाला जो डिस्कशन है आप मेंस के कंटेक्स्ट में भी करते हैं, प्लस यही टॉपिक्स आपके प्री के सिलेबस में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन है। अब प्री में वो आपसे कैसे सवाल पूछेगा, उसने फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंशिएशन दे दिया कि 4 टाइप की एनर्जीज लिखी हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। अब आपको बताना है कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल है। वेरी इजी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स, बट यू हैव टू कवर दीज टॉपिक्स कॉम्प्रहेंसिवली, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंस में इन सारी चीजों के ऊपर लिखना होगा। तो आपके पास हैंड रिटन कंपाइल्ड नोट्स होने चाहिए, ताकि जब आपको ये क्वेश्चन आए तो तुरंत आप उसके बारे में लिख पाए। डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, अब ये जो पूरा टॉपिक है ये आ गया आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और यही आपको यूनिट 7 में भी मेंशन्ड है प्री के सिलेबस में। तो अगर आपने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है तो यही वो आपसे कहां पे पूछेगा, प्री में पूछेगा, और यही आपसे वो कहां पूछेगा, मेंस। बस अप्रोचेस अलग अलग। ये वाला एक टॉपिक इन्होंने एक्स्ट्रा डाला है जो कि बिलोंग करता है टोटली काय को ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसको हम कहते हैं जियोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में है बेसिकली, क्रस्ट, मेंटल कोर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या है, अर्थ का ओरिजिन क्या है, फिर रॉक सिस्टम की बात करता है, टाइप ऑफ रॉक्स की बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ग्राउंड वाटर, नेचुरल कोर, नेचुरल ऑयल एंड गैस। तो ये टॉपिक बेसिकली होना तो ज्योग्राफी के सेक्शन में चाहिए था, बट इन्होंने साइंस एंड टेक में इसको यूनिट 10 बना दिया बाद में। नाउ वी कम टू द फोर्थ पेपर, जो कि काहे का है, एथिक्स का है। और यहां पे बहुत ही इजी पेपर है, यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर 1 पेज नोट्स, जो कि यहाँ पे एक एक टॉपिक लिखा है। सोक्रेटिस जो कि थिंकर है, उनकी जो आइडियोलॉजीज है, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, उनके जो काम थे, उनके थॉट्स थे, उनकी बुक्स थी, उनको एक पेज में आप शॉर्ट में कंपाइल कर लें, उसके बाहर सवाल नहीं जाता। ये सारे थिंकर्स लिखे हैं, फॉरेन एंड इंडियन। देन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एटीट्यूड है, ये कॉन्सेप्ट है एथिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एटीट्यूड बेसिकली क्या होता है, हाउ यू बिहेव और योर माइंडसेट अबाउट सम सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस, कि आप डर की सिचुएशन में क्या एटीट्यूड रखेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। अब उस एक कॉन्सेप्ट, उस एक थॉट के पीछे उन्होंने एक पूरा टॉपिक ऐड कर दिया कि एटीट्यूड के क्या कंटेंट्स होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक अच्छा एटीट्यूड कैसे बनाया जाए, एटीट्यूडनल चेंज क्या होता है। अगर आपको किसी सिचुएशन में या किसी समय, फॉर एग्जांपल आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो अब आप उस एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो प्रोसेस का डिस्कशन है। परसुएसिव कम्युनिकेशन, मतलब कैसे आप किसी को प्रमोट कर सकते हो, उकसा सकते हो कोई एक चीज करने के लिए। प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, ऑर्थोडॉक्स एंड इंडियन कंटेक्स्ट,
प्रेजेडिस का मतलब होता है किसी भी एक चीज के लिए आप पहले से धारणा बना के बैठे हैं, आप पहले से सोच के बैठे हैं कि ऐसे ही होता है। आप उस प्रेजेडिस का यूज करके आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। स्टीरियोटाइप्स एंड ऑर्थोडॉक्स मतलब कि आप पर्टिकुलरली माइंडसेट बना के बैठे हैं कि फीमेल्स आर बैड ड्राइवर्स, फीमेल्स कांट ड्राइव बी गुड ड्राइवर्स। ये क्या हो गया? स्टीरियोटाइप हो गया। ऑर्थोडॉक्स क्या हो गया? रूढ़िवादी सोच। तो ये जो सारी चीजें हैं आपसे एथिक्स में पूछी जाती है। तो द सिलेबस इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि आप एज अ ब्यूरोक्रेट पूरे एस्पेक्ट्स को फॉलो करें, आपका एक नॉलेज बेस हो, प्लस आपका एक एटीट्यूडनल बेस हो, एक बिहेवियर हो, जहां पे आप अवेयर रहो कि ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ब्राह्मण एंड आप एसडीएम की पोस्ट पे बैठ गए। नाउ यू आर सपोज टू हैव डिनर विद सम ट्राइबल कम्युनिटीज, बट देन यू आर थिंकिंग कि ये तो एसटी है, मैं ब्राह्मण हूं, इनके साथ कैसे खाऊं। There you have to have understanding of these things. कि एटीट्यूड बदलना होता है। If you are SDM, then you have to deal with those people. You have to make them feel कि आप उन्हीं के साथ बिलोंग करते हैं और वो आपके साथ बिलोंग करते हैं। That is the only way जब आप कोई चेंज को सही में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। वैसे कॉन्सेप्ट होता है एप्टीट्यूड का, इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब कैसे बहुत ही टफ सिचुएशन में या बहुत ही सफरिंग सिचुएशन में आप अच्छे से बिहेव करें, आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल में रखें। फॉर एग्जांपल, आप एक रिवोल्ट को कंट्रोल करने गए, एक जगह दंगा हो गया और आपको भेजा गया एज अ एसडीएम कि आप जाइए, वो आपकी टेरिटरी में आता है, उस दंगे को कंट्रोल करना है, और वहां पे आप ही पे पत्थरबाजी हो गई। आप चाहें तो ये चीज कर सकते, यू कैन आस्क द पुलिस ऑफिसर्स टू शूट एट दोज पीपल, बट आपको वहां पे पेशेंट रहना, अपना इमोशंस को कंट्रोल में रखना, तभी आप शायद कुछ टाइम में उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसके बारे में बात की जाती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या मोरल्स होने चाहिए, कैसे एथिक्स और मोरल्स का यूज करके आप करप्शन कम कर सकते हैं, अपने काम में एफिशिएंसी ला सकते हैं, उसके बारे में बात करी गई है। करप्शन के बारे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बताया गया कि टाइप्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या है, मिनिमाइज कैसे करें, सोसाइटी में कैसे मीडिया का रोल बढ़ाएं, विसिल ब्लोअर्स का वो रोल बढ़ाएं। विसिल ब्लोअर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि किसी करप्ट एक्टिविटी के बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पे एक करप्ट एक्टिविटी हुई है, गलत हुआ, उनको विसिल ब्लोअर्स बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी, लोकपाल, लोकायुक्त, ये जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, आप पॉलिटी में पढ़ेंगे करप्शन को कम करने के लिए कैसे काम करते हैं, इनका यूज क्या है, उसकी बात। देन वी टॉक अबाउट केस स्टडीज। केस स्टडीज में क्या है? केस स्टडीज में आपको सिचुएशंस दी होती हैं और उन सिचुएशंस में आपको अपने आप को रख के देखना होता है कि आप कैसे हैंडल करेंगे। कुछ गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास वो ब्यूरोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग या थिंकिंग होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप सॉल्यूशंस देंगे। एंड दिस इज द सिलेबस ऑफ हिंदी, जहां पे आपको सामान्य हिंदी एंड व्याकरण के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बेसिकली अलंकार पढ़ने होते हैं, वाक्यों का अनुवाद करना होता है इंग्लिश में, इंग्लिश के वाक्य होते हैं उनको हिंदी में बदलना होता है, हिंदी के होते हैं उनको आपको इंग्लिश में बदलना होता है। प्रारंभिक व्याकरण एकदम शब्दावली, विलोम शब्द, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, मानक शब्दावली, और एक टॉपिक होता है काय का? अपठित गद्यांश का, अनसीन पैसेजेस। तो ऐसे आपका एक पूरा टॉपिक काय का है? हिंदी का। दिस पेपर, दोज हु हैवंट स्टडीड हिंदी फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी, ये बहुत ही एक इजी पेपर होता है। एंड ये पेपर बनाया ही इस लेवल पे गया है कि कॉम्प्रहेंसिवली सब इन चीजों को डील कर सके। ये पेपर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क इन हिंदी लैंग्वेज एज अ ब्यूरोक्रेट। आपको हिंदी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन एक पेपर होगा जहां पे आपको क्या करना होगा? आपको ऐसे लिखना होगा, आपके पास ऐसे आएंगे और उन टॉपिक्स के ऊपर आपको हिंदी में ऐसे लिखने होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेंस सिलेबस। यहाँ पे आपका जो पूरा कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस है मेंस का, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है।
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, कि कैसे जो मेंस का सिलेबस है वो पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर कर लेता है। एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि आपको एमपी की क्या पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, डायनेस्टीज पढ़नी पड़ती है, बट यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं प्रीलिम्स में, जहां पे आपको एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न पूरी हिस्ट्री पढ़नी होती है, फ्रीडम मूवमेंट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ना होता है, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक हो गया, लिटरेचर हो गया, राइटर्स हो गए, ठीक है, आपके जो फेमस आर्टिस्ट थे, प्लस कौन सा मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है, क्यों सिग्निफिकेंट है, किसने बनवाया था, वो सारी चीजें आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़नी पड़ती है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द एंटायर सिलेबस जो आप एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का मेंस में पढ़ेंगे वही आपको प्री में पूछा जाता है, और इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि किन चीजों पे ये ज्यादा फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी, ये सारे वही मूवमेंट हैं जो कि 1814 से स्टार्ट होते हैं राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, जो सोसाइटी में सुपरस्टिशंस थे, प्रॉब्लम्स थे, उनको कैसे सुधारा जाए, उनमें कैसे इंप्रूवमेंट लाया जाए, उनकी बात करते हैं। प्री में वो यहां से आपसे एक या दो सवाल हर बार पूछते हैं। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंटीग्रेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। So very easy questions, very specific questions are asked from this section also. ऑब्जेक्टिव रहता है, आपसे डेट्स पूछ लेते हैं कि कौन सा एम्पायर किस टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट करता था, कौन सा राजा महाराजा है वो किस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था या किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था। These questions are mainly asked. ज्योग्राफी और एमपी, हमने ये पूरा सिलेबस देखा है मेंस में, वो आपसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वाइल्ड लाइफ, रिवर, माउंटेन, माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं, वो आपसे क्लाइमेट की बात करते हैं, नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको मिनरल रिसोर्सेज को सब्जेक्टिवली नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिवली जानना होता है कि एमपी के किस रीजन में कौन सा मिनरल प्रेजेंट है और कौन सी माइन से हमें वो मिनरल मिलता है। देन ट्रांसपोर्ट, मेजर इरिगेशन प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, हम इसकी बात करते हैं। Then geography of world is discussed. So we have already discussed this point कि physical features of the world, natural resources of the world, social geography of world and economic geography of world, जहाँ पे सेंसस की बात इंडिया के कंटेक्स्ट में की जाती है। बाकी ये जो दो पॉइंट्स है यहाँ पे आपसे वो वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंस के सिलेबस में ये दोनों टॉपिक को अलग अलग रखा गया है। उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बताया है कि यूनिट 1 में हम ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड पूछेंगे, यूनिट 2 में हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पूछेंगे, बट यहाँ पे उन्होंने ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया कर दिया। तो वो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आपसे फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं, बट बाकी जो सारे टॉपिक्स है ये किसके कंटेक्स्ट में आते हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अब यहाँ पे आपका एक और टॉपिक आता है जो कि एमपी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको इकोनॉमी एमपी की पढ़नी होती है और पॉलिटी का पढ़नी होती है एमपी की। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि एमपी का जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स रहे, फॉर एग्जांपल पहले स्पीकर कौन से रहे हैं या कौन से स्पीकर का क्या टाइम पीरियड था, चीफ मिनिस्टर्स कौन से रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के हेड्स कौन से रहे हैं, गवर्नर कौन कौन रहे हैं, कब कब रहे हैं, हाई कोर्ट जजेस कब रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपसे एमपी की पॉलिटी में पूछता है। इकोनॉमी में वो डेमोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, मेजर इंडस्ट्रीज पूछ लेता है, स्टैटिस्टिक्स पूछ लेता है कि इस क्वार्टर में जो एमपी का ग्रोथ रेट था इस सेक्टर में वो कितना था। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में हमने देखा कि जो मेंस का सिलेबस है उसमें बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं कि वो कहाँ से सवाल पूछेंगे। सेम चीज उन्होंने यहाँ करी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये जो एक्ट्स हैं ये 1773 से चालू हो जाती है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आई, पिट्स इंडिया एक्ट आई, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आती थी, ऐसे बहुत सारी एक्ट है, बट वो आपसे सिर्फ दो एक्ट के बीच सवाल पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन एक्ट्स के जो पॉइंट्स थे या प्रोविजंस थे ये सिर्फ वहीं से सवाल पूछेंगे।
दैट्स इट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि मेंस में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम. अब ये जो 2-3 पॉइंट्स है ये आपके इकोनॉमी के इन्होंने यहीं पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, एनएसई हो गया, बैंक्स हो गए, जो नॉन बैंकिंग फर्म्स हैं, उनके बारे में ये आपसे पूछ सकते हैं. और ये जो यूनिट 7 है इसमें उन्होंने सिंगल पॉइंट मेंशन किए हैं, पर जब आप मेंस को देखेंगे तब आप समझेंगे कि इन सिंगल वर्ड पॉइंट्स के अंदर बहुत स्पेसिफिक और बहुत वास्ट टॉपिक कवर्ड है. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, इसके अंदर उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो पूरा आपने पढ़ा इलेबोरेट मेंस के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं. इंपॉर्टेंट इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन देयर अचीवमेंट, जो आपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पढ़े, डीआरडीओ, इसरो, आरआर कैट, वो सारे आपसे पूछे जाएंगे कि उनका फॉर्मेशन कब हुआ, किसने कंट्रीब्यूट किया था उसके फॉर्मेशन में, वो सारी बात है. देन एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल सिस्टम, आपने एनवायरमेंट का टॉपिक देख लिया. न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट, ह्यूमन बॉडी, ये भी आपके मेंस के टॉपिक में हमने देखा था. एग्रीकल्चर, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जो टॉपिक था ज्योग्राफी में, वो आ गया, फूड प्रोसेसिंग. हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम्स, पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कवर कर लेंगे अगर आप अपने मेंस के सिलेबस को थॉरली पढ़ते हैं. प्रीलिम्स का कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं होगा जो रह जाए. देन कम्स द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स. करंट अफेयर में वो आपसे पूछते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एंड प्लेसेस जो इंडिया और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में रहे, मेजर इवेंट्स कौन कौन से हुए, एंड स्पोर्ट्स का ये पूरा टॉपिक आ जाता है कि कौन सा अवार्ड के स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन सा स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है, ये जो प्लेयर्स हैं ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है. तो ये सारी चीजें आपसे इस पॉइंट पे पूछी जाती हैं. और ये रही आपकी यूनिट 9 जो कि साइंस एंड टेक में आपने मेंस में देख ली. इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, ये सारी चीजें आपकी यूनिट 9 में आ जाती है. और जो पूरा यूनिट 10 है, दिस इज ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर जीएस पेपर 2. इनके आप ऑलरेडी 1 पेज नोट्स बना लेंगे और यहां से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो जो मेजर अंडरस्टैंडिंग थी और जो मेजर चीज हम यहां से गेन कर सकते हैं वो यही है कि अगर आप प्री के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ रहे हैं तो आपका जो मेंस है वो अपने आप पूरा हो जाएगा. So this was the entire discussion of your syllabus. I hope आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि सिलेबस क्या है, आपके प्रीलिम्स और मेंस में आपसे किन चीजों पे बात की जाएगी, आपसे क्या पूछा जाएगा. भाई आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि किन चीजों में आप अच्छे हैं या किन चीजों में आप और इम्प्रूव करने की जरूरत है. बट अब मेन क्वेश्चन आता है व्हाई व्हाट, व्हाई टू चूज दिस प्रोग्राम, व्हाई टू चूज कौटिल्य अकेडमीज डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम. हमें इस प्रोग्राम में क्या मिलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, एवरीबडी शुड इन फैक्ट हैव इट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो इस पूरे रीजन में सबसे एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूट है और जो सबसे एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, आपको उनकी गाइडेंस मिलेगी और आपको उनकी टीचिंग एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा. प्लस कौटिल्य अकेडमी हैज बीन गिविंग रिजल्ट्स फॉर द almost like 10-15 years. For last 10-15 years toppers have been given by this institution. आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं. That is why in the first place you were trying to search about this institute, what best this institute can give you. The best it can give you, it can streamline and synchronize your entire preparation of prelims plus mains, plus the added benefit that when you clear the prelims and mains examination, you will be getting the direct mentorship of Naren Singh Somvanshi sir, experienced
लोगों को हो सकता है आप जानते हो कि प्री का है, किसी की अच्छी फैकल्टी है मेंस की, बट यहाँ पे प्री और मेंस की फैकल्टी इज डिफरेंट। आपको एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव फैकल्टी मिलेगी प्री प्लस मेंस की, एंड आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस जो मिलेगी वो डायरेक्टली सोमवंशी सर की मिलेगी। तो दैट इज द मोस्ट biggest reason why you should choose this course. Also, there is a point कि there are many people who have to stay at their homes. वो घर से यहाँ इंदौर आके नहीं पढ़ सकते, एंड इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि कौटिल्य एकेडमी की एक ब्रांच उनके शहर में भी हो। कई लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे स्टेट्स में रह रहे हैं, स्टिल दे वांट टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। तो दिस इज एन इंस्टीट्यूट जो कि टोटली डेडिकेटेड है आपकी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, और ये चीज आपको किसी और इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती। What things we have to offer? क्या ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें हैं जो ये इंस्टीट्यूट आपको दे सकता है इस प्रोग्राम के अंदर? इसके अंदर बेसिकली आपको सबसे इंपॉर्टेंटली क्या दिया जाएगा? रेगुलर क्लासेस प्लस हैंड रिटन नोट्स। जो क्लास नोट्स यहाँ पे बच्चों को लिखवाए जाते हैं, उन्हीं के पीडीएफ्स आपके पास आपके ऐप पे अपलोड किए जाएंगे, और उन्हीं पीडीएफ से आप अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि नोट्स मेकिंग होती क्या है, आपको कैसे जो इंफॉर्मेशन और डेटा रेगुलर क्लासेस में प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें आपको अपने नोट्स बनाने। उस टॉपिक का एक नोट बनेगा जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट होगा, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस यूजिंग दैट नोट ओनली। देन आपको बताया जाएगा कि किन सोर्सेज से पढ़ना है, ठीक है, एंड आपको किस किस टाइम पीरियड में टेस्ट देने। टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ असेसमेंट। इफ यू आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, then you are not gaining knowledge or absorbing knowledge very comprehensively. You have to understand that. So these are the very important things which are covered under this course. Now very important thing, what are our course goals? We have already discussed कि आपको सबसे पहली चीज मिल रही है लर्न फ्रॉम होम। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पीपीटीज में हर चीज समझाई जाएगी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ज्योग्राफी है तो वो बताई जाएगी, हिस्ट्री है तो कैसे एम्पायर्स होते थे, किंगडम्स होते थे, राजा महाराजा कैसे होते थे, वो चीजें आपको सारी वीडियोस के थ्रू और फोटोज के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन की जाएगी। उसके बाद जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको वही इंपॉर्टेंट सोर्स बताए जाएंगे जो आपको इजीली मिल जाए। आपको कोई भी ऐसा सोर्स नहीं बताया जाएगा जो आपके आसपास नॉर्मल रेगुलर स्टेशनरीज में ना मिले। देन कंप्लीट सिलेबस इन टाइम, ट्रेन यू एनालिटिकली। एनालिटिकली क्या होता है? आपने नॉलेज तो एब्जॉर्ब कर ली, आपने किसी चीज को पढ़ ली, बट जिस डायमेंशन से या जिस कंटेक्स्ट में आपने कोई चीज को पढ़ा है, पेपर में शायद वो अलग तरीके से आ जाए। अब आपको उस नॉलेज को कैसे यूज करना है, जो लिमिटेड नॉलेज आपके पास है, और उसको अलग डायमेंशंस में यूज करना है, वो एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है। एज अ ब्यूरोक्रेट वही आपसे एक्सपेक्टेड होता है, कैसे लिमिटेड नॉलेज को एक वास्ट डायमेंशन में वास्ट तरीके से आप यूज कर सकते हैं। देन परफेक्शन इन आंसर राइटिंग, द की फीचर ऑफ दिस कोर्स, कि आपको इस कोर्स के साथ साथ फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी दिया जाएगा। हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 3, 5 और 11 मार्कर्स बता देंगे। आपको ये बता देंगे कि ये लिखना कैसे, एंड देन आपको पर्सनली वो चीज दी जाएगी कि आप आंसर्स लिख के जो कंसर्न फैकल्टी है उनको भेज दें, और वो आपके आंसर्स को चेक करके भेजेंगे। तो आपको उस चीज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट हैपेंस कि लोग पढ़ तो पूरा लेते हैं, प्री भी निकल जाता है, बट आंसर लिखना आता ही नहीं है, बिकॉज दैट इज एन आर्ट। आपको वर्ड लिमिट है 10 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 150 वर्ड्स। इसमें आपको जितना आता है या जितना नहीं भी आता है उसको पूरा लिखना है। कम शब्दों में पूरी बात करना इज द हार्डेस्ट थिंग विच एनी ह्यूमन कैन एक्सपीरियंस। तो वो आर्ट आपको यहाँ सिखाई जाएगी। देन
हैंड रिटन क्लास नोट्स, एज आई हैव टोल्ड यू, आपको हर टॉपिक का एक पीडीएफ मिलेगा और वो पीडीएफ आपके जो नोट्स होंगे आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना होगा, अलॉन्ग विथ जो कंसर्न फैकल्टी आपको बुक्स बताएंगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कोर्स फॉर्मेट, क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है जब ये कोर्स आप फॉलो कर रहे हैं। ये कोर्स 1 साल चलेगा, ये कोई 10-15 या दिन का या 1 महीने का कोर्स नहीं है, ये 1 साल का कोर्स है। एंड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीचर से 100% इनपुट, तो टीचर भी एक्सपेक्ट करता है कि आप भी 100% इनपुट दें। डोंट जस्ट कम एंड अटेंड द क्लासेस, देयर शुड बी मेंटल एंड फिजिकल सिंक्रोनाइजेशन, कि आप वहां पे फिजिकली प्रेजेंट हैं तो आप मेंटली भी वहीं प्रेजेंट रहें। अगर कोई चीज आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में भी जाए, ये एक्सपेक्टेड है आपसे। देन प्रीलिम्स एंड मेंस सिंक्रोनाइज क्लासेस, प्री प्लस मेंस की क्लासेस होंगी। हर टॉपिक आपको कॉम्प्रिहेंसिवली प्री प्लस मेंस कवर करने के लिए पढ़ाया जाएगा। देन नोट्स मेकिंग, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आप नोट्स पे फोकस कर सकते हैं और सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, कि टीचर तो आपको बता देंगे कि पेपर में इस टॉपिक से क्या सवाल आए थे, बट आपको खुद बैठ के ये एनालाइज करना होगा कि प्री और मेंस में क्या सवाल आ चुके हैं। क्या ये टॉपिक होने के बाद आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते बन रहा है, क्या आप आंसर्स लिख पा रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ नॉट, देन यू हैव टू आस्क द कंसर्न्ड अथॉरिटी और टीचर कि सर दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आई एम फेसिंग। और ये आप कैसे करेंगे, जब आपको पर्सनल डिस्टेंट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा। आपको एक मेंटर असाइंड होंगे, उन मेंटर को आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल का टाइम डिसाइड कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। देन टेस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ टॉपिक्स एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। Hours of self study and how to self assess. There's no use of any preparation if you are not able to assess yourself. आपने 1 महीना पढ़ाई करी, आपने एक टॉपिक पूरा कर लिया, बट आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो पेपर कभी नहीं निकलने वाला। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप उस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ें और उस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जब आप वो चीज करेंगे, जब आप वो हैंडल कर पाएंगे, तब आपकी जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक बनेगी। तो सबसे पहले आप ये करें कि आप जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर उस टॉपिक से आए हैं उनको सॉल्व करें। फिर आप और क्या कर सकते हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ के उसके ऊपर 1 पेज लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आप जानिए कि अगर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी है या आपने ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ा है, तो क्या आप उसके ऊपर 1 पेज लिख पा रहे हैं? अगर आप 1 पेज भी नहीं लिख पा रहे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका नॉलेज कितना लिमिटेड है और जिस तरीके से आपको नॉलेज गेन करना चाहिए था आपने शायद नहीं किया। टेक क्लास टेस्ट एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देन एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, इट इज एटलीस्ट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि आप 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी करें। आप एटलीस्ट जो नोट्स आपको प्रोवाइडेड है उनको रिवाइज करें और जो स्टैंडर्ड बुक्स आपको बताई जाएंगी उनके जो चैप्टर्स होंगे आप उनको अच्छे से पढ़ लें। नाउ why many people fail and why you will triumph. The only reason why people fail in this preparation is they lose motivation with before time, and the second is their preparation is never comprehensive. And this is our goal at this institute, to make your motivation level boost to the heights of sky and make your preparation so comprehensive that whenever you face your prelims, mains or interview, you never face anxiety. So this was it from my behalf. My name is Arunab Singh Chauhan and I'll be seeing you at classes where I'll be conducting your classes under this course. Thank you and have a great day.